Good morning students, I am your chemistry teacher Swati and this is part 5 of chapter surface chemistry. In this video you will study the property which is electrophoresis shown by colloidal particles. So electrophoresis is an experiment which confirmed the existence of charge on colloidal particles. So what basically has done in this experiment, when electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, it is saying, see, this is a setup of electrophoresis. You can see a U-tube shape like structure, and in this U-tube solution is there which is a colloidal solution, and this is cathode and anode which is made up of platinum. So two platinum electrodes are there which is basically dipped in a colloidal solution. So when electric potential is applied or electric charge is applied to this setup or this cathode and the anode, you will see the particle or the colloidal particles move towards one or the other electrode. तो जैसे ही यहाँ करंट पास करेंगे सेटअप में तो आपके colloidal particles किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ने लग जाएंगे या जाने लग जाएंगे, whether it will be cathode or the anode. So this movement of colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis. So इसी movement को हम क्या बोलते हैं, electrophoresis, because colloidal particles are now moving under an applied electric potential. जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, then your colloidal particles are moving and that movement is known as the electrophoresis. So the movement of particle under an applied electric potential is called electrophoresis. The positively charged particles move toward the cathode while the negatively charged particles move toward the anode. जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रहता है कि एनोड की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स जाएंगे और एनोड की तरफ नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे इसी तरीके से आपके पार्टिकल्स उसी चार्ज के कैथोड और एनोड की तरफ जाएंगे या मूव करेंगे. एंड दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ये एक सेटअप है, इसमें आप देख सकते हैं. When electrophoresis, that is movement of particle, is prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field. जब आप इसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करें किसी सुटेबल मीन्स की हेल्प से, ठीक है ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो मीडियम है डिस्पर्जन वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा और मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. फाइन. मैं दोबारा बता देती हूँ व्हाट इट इज सेइंग. व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स. सपोज हमने किसी तरीके से इसको रोक दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस रोक दिया या मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स रोक दिया हमने, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा. फाइन. और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. Now the next property, it is the coagulation or precipitation property. Now it is saying the stability of the lyophobic soles is due to the presence of charge on colloidal particles. अब लायोफोबिक सोल्स की स्टेबिलिटी किसकी वजह से एक्सप्लेन है, बिकॉज कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज है, इसी वजह से आपकी लायोफोबिक सोल्स क्या है, वो स्टेबल है. इफ़ सम हाउ द चार्ज इज़ रिमूव्ड, अगर सपोज किसी तरीके से मैं चार्ज रिमूव कर दूँ, द पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स. तो जब आप उनके चार्ज को रिमूव कर देंगे तो पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, दे विल कम क्लोजर एंड दे फॉर्म द एग्रीगेट्स और दे कोएगुलेट एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो जब तक चार्ज है तब तक लायोफोबिक सोल स्टेबल है. जैसे ही चार्ज हटाया किसी तरीके से, पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, एग्रीगेट बनाएंगे या कोएगुलेट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन. And this process of settling of colloidal particles is called the coagulation or the precipitation of the soul. इसी settling of colloidal particle को ही हम क्या बोलते हैं, coagulation or the precipitation of the soul. And the coagulation of the lyophobic soles can be carried out by the following ways. So इन तरीक़ों से हम lyophobic soul की coagulation को prevent कर सकते हैं. First is by electrolysis. The colloidal particles move toward oppositely charged electrodes, get discharged and precipitated. So colloidal particles जो opposite charge के होंगे वो different और अलग अलग electrodes की तरफ जाएंगे. They will move toward oppositely charged electrons
एंड वहाँ जाके वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स, अगर आप दो डिफरेंट ऑपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स कर दें इक्वल प्रोपोर्शन में तो क्या होगा, दे विल न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस एंड गेट पार्शली और completely precipitated. So oppositely charged souls when mixed in almost equal proportions they neutralize their charges and get partially or completely precipitated. And it is saying mixing of hydrated ferric oxide which is the positive soul and arsenious sulfide which is negative soul bring them in the precipitated forms. तो जब आप दो सोल्स को मिक्स कर रहे हैं, एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है जो पॉजिटिव सोल है और आर्सेनियस सल्फाइड है जो नेगेटिव सोल है, इनको जैसे ही मिक्स करेंगे तो ये आपको एक क्रॉस प्रेसिपिटेटेड फॉर्म दे देगा। इस टाइप के कोएगुलेशन को हम बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन, पॉजिटिव सोल एंड दी नेगेटिव सोल। वाई? नाउ नेक्स्ट इज बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से भी आप कोएगुलेट कर सकते हैं लायोफोबिक सोल्स को। When a soul is boiled, the adsorbed layer is disturbed. जब सोल को आप बॉयल करेंगे तो जो adsorbed layer है वो डिस्टर्ब हो जाएगी due to increased collisions with the molecules of dispersion medium. बिकॉज अब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल से। जैसे ही डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल से कोलिजन बढ़ेंगे आपका जो एड्जॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे ही एड्जॉर्ब लेयर डिस्टर्ब होगी तो चार्जेस जो हैं पार्टिकल के ऊपर से रिड्यूस हो जाएंगे। सो दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सेटलिंग डाउन इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। सो जैसे ही चार्ज आपके रिड्यूस हो पार्टिकल के ऊपर से वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा और प्रेसिपिटेट बना देगा। नाउ नेक्स्ट इज़ बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। अब डायलिसिस से भी आप ये रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस traces of electrolytes present in the soul are removed almost completely and the colloids become unstable and ultimately coagulate. तो अगर आप काफ़ी लंबे समय तक डायलिसिस करते रहेंगे तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट के ट्रेसेस प्रेजेंट है सोल के अंदर वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाएंगे, कंप्लीट रिमूव हो जाएंगे और कोलॉइड आपका अनस्टेबल हो जाएगा और अल्टीमेटली कोएगुलेट होकर सेटल डाउन हो जाएगा। Next is by addition of electrolytes. You can also coagulate your soul by addition of electrolyte. It is saying when excess of electrolyte is added, जब हम excess of electrolyte add कर दें, the colloidal particles are precipitated. The reason is that, अब रीज़न क्या है इसके पीछे? It is saying colloids interact with the ions carrying charge opposite to that present on themselves. जैसे ही आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला कोलॉइड के अंदर, आप कोलॉइड में भी चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में भी चार्ज है, तो कोलॉइड का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के उस आयन से इंटरैक्ट करेगा जिसका जो उसके ऑपोजिट रहेगा, ठीक है ना। सो कोलॉइड इंटरैक्ट विद द आयंस कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ एंड दिस कॉजेज न्यूट्रलाइजेशन लीडिंग टू देयर कोएगुलेशन। तो इससे क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और वो कोएगुलेट हो जाएंगे। And the ion responsible for neutralization of charge on the particle is called coagulating ion. जिस आयन की वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है चार्ज की कोलॉइडल पार्टिकल के, उस आयन को हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेटिंग आयन। A negative ion causes the precipitation of positively charged soul and vice versa. तो नेगेटिव आयन किसको प्रेसिपिटेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सोल को, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सोल को प्रेसिपिटेट करेगा। एंड it has been observed that generally the greater the valence of the flocculating ion added, the greater is its power to cause the precipitation. अब ये कह रहा है कि greater the valency of the flocculating ion added, अब ये कह रहा है कि जनरली जो हम आयन ऐड कर रहे हैं जो कोएगुलेट कराएगा आयन, ठीक है ना, उसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही उसकी पावर होगी प्रेसिपिटेट कराने की। एंड दिस इज़ नोन एज द हार्डी-शोल्स रूल। एंड इन द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल द फ्लोक्युलेटिंग पावर इज़ इन द ऑर्डर। अगर आपको नेगेटिव सोल को कोएगुलेट करना है उस केस में फ्लोक्युलेटिंग पावर दिखाई गई है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी रहेगी किसी आयन की, या जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव आयन का या जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का आयन होगा, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी सामने वाले को कोएगुलेट करने की। सो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा है फ्लोक्युलेटिंग पावर, देन बेरियम पॉजिटिव, देन सोडियम पॉजिटिव। Similarly, in the coagulation of positive soul, the flocculating power is in the order, like you can see this 4 negative is greater than 3 negative, then 2 negative and least is the 1 negative. So जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा फ्लोक्युलेटिंग आयन पे, जो आपकी बेसिकली क्या करवा रहा है, कोएगुलेशन करा रहा है, उस आयन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होगी।